हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। आप लोग का स्वागत है एक बार फिर से सुमो बायोलॉजी में। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इज गोइंग ऑन। दिस इज द चैप्टर फ्रॉम क्लास 11, चैप्टर नंबर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. Till now we have discussed the prokaryotic cell in detail, and the eukaryotic cell description is going on, and in the last lecture we have discussed about endomembranous system. Now move to the next section, next topic, mitochondria. Okay, so let's start with mitochondria. Mitochondria, singular, mitochondrion, unless specifically stained are not visible under the microscope. माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखाई नहीं देगा, नॉट विजिबल अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन. तो उसको आपको स्पेसिफिकली स्टेन करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए. तो जेनस ग्रीन वो स्टेन है जिसको यूज़ किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने के लिए. तो विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप आपको स्टेन करना पड़ेगा. द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल. सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे डिपेंड करता है कि उस सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है. अगर इफ सेल इज फिजियोलॉजिकली वेरी एक्टिव देन द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वुड बी हाई, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन का साइट है, इसलिए जो सेल्स फिजियोलॉजिकली बहुत एक्टिव है उनमें द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वुड बी हाई. इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज आल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड. माइटोकॉन्ड्रिया में आपको शेप और साइज में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल सकता है. टिपिकली अ सॉसेज शेप, तो अगर टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये सॉसेज शेप का होता है, थोड़ा सा सिलेंड्रिकल टाइप का होता है. सॉसेज शेप और सिलेंड्रिकल, having a diameter of 0.2 to 1.0 micrometer. तो 0.2 to 1.0 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है. एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर एंड लेंथ 1.0 to 4.1. और लेंथ जो है ये डायमीटर है, इसका डायमीटर का डायमेंशन है, और लेंथ जो है 1.0 to 4.1 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ है. diameter and length of a typical mitochondria. Each mitochondria is a double membrane bound. Mitochondria जो है double membrane bound cell organelle है. Double membrane bound structure. Mitochondria is a double membrane bound structure. This is the representation diagram of a mitochondria. This is the outer membrane, inner membrane enfoldings that are called as cristae, and this is the ground substance matrix. So mitochondria is a double membrane bound cell organelle, double membrane bound structure, with the outer membrane and the inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartments. Outer membrane and inner membrane divides distinctly outer membrane and inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartment, that is the outer chamber and inner chamber, or outer compartment or inner compartment. This is the outer compartment, this is the inner compartment.
Okay, outer compartment and inner compartment. This is the outer compartment, this is the inner compartment. With the outer membrane and inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartments, the outer compartment and the inner compartment. The inner compartment is filled with a dense homogeneous substance called the matrix. तो इसमें दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हैं, उस इनफोल्डिंग्स की वजह से ये डिवाइड हो जाएगा दो कंपार्टमेंट में, outer compartment and inner compartment. This is outer compartment, inner compartment. The outer membrane forms the continuous limiting boundary. Outer membrane is continuous. The inner compartment is filled with dense homogeneous substance. This inner compartment is filled with dense homogeneous substance called the ground substance or matrix. Outer membrane forms the continuous limiting boundary. Outer membrane is continuous limiting boundary of the organelle. The inner membrane forms a number of enfolding. Inner membrane forms a number of enfolding called cristae towards the matrix. The cristae increases the surface area. Due to the formation of cristae or enfolding of this inner membrane, the surface area is increased. Cristae increases surface area. The two membranes have their own specific enzyme associated with mitochondrial function. These two membranes have their own specific enzyme. दोनों मेम्ब्रेन के एंजाइम अलग अलग हैं. टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन. तो दोनों मेम्ब्रेन का फंक्शन भी अलग है, इसलिए दोनों मेम्ब्रेन के एंजाइम भी अलग है. माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन. दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक respiration. Mitochondria are the site of aerobic respiration. They produce cellular energy in the form of ATP, and they produce cellular energy in the form of ATP. Hence, they are called powerhouses of the cell. So, mitochondria considered as a powerhouse of a cell. The matrix also possesses single circular DNA molecule. The matrix, the ground substance, possesses single molecule DNA molecule, single circular DNA molecule. Few RNA molecules are also present. Ribosomes are also present, and the component required for the synthesis of protein. So the complete machinery that required for synthesis of protein present in the mitochondria. Therefore, mitochondria behave as a semi-autonomous cell organelle. The mitochondria divide by fission, and mitochondria divide by fission. Mitochondria can replicate itself. Mitochondria divide by fission. So, the points you have to remember that it is a double membrane bound organelle. The outer membrane is continuous. The inner membrane show enfoldings, that is called cristae. Due to the cristae, the surface area is increased, and mitochondria is the site of aerobic respiration, cellular respiration. It form ATP, therefore it is called as powerhouse of cell. Mitochondria, you will find the high number of mitochondria in those cells which are physiologically very active. Mitochondria are the matrix, inner compartment and outer compartment. The enfolding of these two membrane produces outer compartment and inner compartment. Inner compartment is filled with homogeneous substance, that is called matrix. In matrix you will find a DNA molecule, double stranded circular, DS circular DNA molecule is present in the matrix, and few RNAs and ribosomes. Ribosomes that are present in mitochondria are of 70S type.
and machinery required for the synthesis of protein. Therefore, mitochondria can synthesize their own protein. Mitochondria act as a semi-autonomous organelle. Mitochondria replicate itself. Mitochondria divide by fission. The outer membrane and inner membrane. These two membranes possess different type of enzymes, specific enzymes, so that they can perform their specific function. Outer membrane is almost permeable, fully permeable, whereas inner membrane is selectively permeable. These are the few points about mitochondria. माइट्रोकॉन्ड्रिया को स्टडी करने के बाद, और ये सॉसेज शेप्ड होता है, सिलेंड्रिकल शेप्ड होता है टिपिकली. ऑन एन एवरेज इसका जो साइज़ है 0.2 to 1.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड 1.0 to 4.1 माइक्रोमीटर इन लेंथ. ये इसके साइज़ हैं. तो इतना जानने के बाद माइट्रोकॉन्ड्रिया का हम लोग कुछ इसके बारे में क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं. आइए चलें पूरब की ओर, मतलब मेरे स्लाइड वाले तरफ देखें स्लाइड्स में क्या दे रहा है. तो स्लाइड्स में आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, माइट्रोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन जेनस ग्रीन. ये मैंने वहाँ लिख ही दिया था पहले ही. जेनस ग्रीन वो आपका स्टेन है जिससे आप इसको कलर करेंगे तो आपको इजीली ये विजिबल हो जाएगा अंडर द माइक्रोस्कोप. ठीक, चलिए अगली स्लाइड पर चलें. इसमें इतना ही है. टिपिकली सॉसेज शेप वही बातें हैं जो आपकी दे रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं. द आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टीन, सरफेस एरिया, स्पेशल एंजाइम, सब वही बातें हैं जो आपके एनसीईआरटी में दे रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं. आगे चलिए. इनर मेम्ब्रेन फॉर्म द, जी यहाँ पर शायद आपको कुछ अलग मिल सकता है. इनर चैम्बर फॉर्म्स द कोर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया. तो ये आपका देखिए, इसमें आपको कुछ बेटर विज़न मिल रहा है कि कैसे क्या है. तो ये आपका आउटर कंपार्टमेंट, ये आपका इनर कंपार्टमेंट. ये इसने देखिए डीएनए मॉलिक्यूल दिखाया है. ठीक है जी. राइबोसोम्स दिखा दिए हैं. मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस है मैट्रिक्स. इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन. ठीक है. इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दिस इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ठीक है. क्रिस्टी हो गया. क्रिस्टी पे F0 F1 पार्टिकल इन्होंने दिखा दिए, अभी दिखा दिए. अच्छी बात है, मालूम भी होने चाहिए. It contains matrix. The matrix also possesses single circular DNA molecule, few RNA, ribosomes, and the components required for synthesis of protein. सारी बातें हो गई. Enzyme for Krebs cycle, except succinate dehydrogenase. जब Krebs cycle पढ़ा था तब मैंने ये आपको हाईलाइट किया था कि Krebs cycle के all the enzymes of Krebs cycle are present in the matrix, whereas succinate dehydrogenase is associated with inner membrane. तो अब Krebs cycle के सारे एंजाइम आपके मैट्रिक्स में हैं एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस. इंपॉर्टेंट बात है, ये हाईलाइट मैं कर चुका हूँ. अमीनो एसिड सिंथेसिस, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए भी एंजाइम यहाँ पे आपको मिल रहे हैं. गुड. चलिए आगे चलें. अगली स्लाइड पे आपको दिखा रहा है मेम्ब्रेन का कंपैरिजन. आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन, आउटर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में स्मूथ है, एंजाइम्स फ्यूअर हैं, परमिएबल टू मोस्ट बायोकेमिकल, ऑलमोस्ट परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, जैसा कि मैंने अभी आपको हाईलाइट किया था. ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर आउटर मेम्ब्रेन पे नहीं होते, इनर मेम्ब्रेन पे होते हैं. ये आगे हम लोग पढ़ेंगे. मेम्ब्रेन इज स्मूथ, एंजाइम्स आर फ्यूअर. मेम्ब्रेन इज रफ, कंटेन्स अ नंबर ऑफ एंजाइम. ये इसके आउटर एंड इनर. इसको आप पॉज करके चाहो तो इसको आप डाउनलोड करो. आगे बढ़ो. माइट्रोकॉन्ड्रिया के फंक्शन, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है, प्रोड्यूसेस सेलुलर एनर्जी, ATP प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स फॉर द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेवरल बायोकेमिकल. छोड़ो. मैट्रिक्स ऑफ द इनर चैम्बर ऑफ द माइट्रोकॉन्ड्रिया हैज एंजाइम्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, अमीनो एसिड्स. एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द एलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड हैव बीन रिपोर्टेड इन द आउटर माइट्रोकॉन्ड्रियल चैम्बर. Synthesis of many amino acid occurs in mitochondria. The first form amino acid are glutamic and aspartic acid. ये लाइन इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखिए. Many amino acid get synthesized in the mitochondria. The first form, जो सबसे पहले अमीनो एसिड्स बनेंगे वो हैं ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड. बाद में इनके ट्रांसएमिनेशन से डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स बनेंगे. दे आर सिंथेसाइज फ्रॉम द अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड.
glutamic acid synthesized by alpha ketoglutarate acid and aspartic acid synthesized by from oxaloacetic acid। ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसको आप उठाइए यहाँ से, आगे बढ़िए। तो अब हम लोग आ जाते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे आपके माइटोकॉन्ड्रिया पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन आर नॉट विजिबल। ठीक है, जेनस ग्रीन आपने देखा। फिजियोलॉजिकली एक्टिविटी ऑफ सेल डिटरमिन्स द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। द सेल्स विच आर हाईली एक्टिव, उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मोर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन, दिस इज आल्सो करेक्ट। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स इनफोल्डिंग, number of infolding called cristae. This is the not the correct statement because cristae is the infolding of inner membrane. Cristae are infoldings of inner membrane. So this statement number D is not correct. Why the concentration of number of ions and other material is higher in vacuoles than those in cytoplasm? So ये यहाँ पे मिसमैच है, ये आपका एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का क्वेश्चन है, यहाँ पे हो गया पेस्ट, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। टोनोप्लास्ट हैव अ नंबर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट पंप आयंस इनटू द वैक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म। यही कारण है। थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस से नहीं आ रहे क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट से अंदर लाए जा रहे हैं, यही कारण है कि उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्मिक आयन एंटर द वैक्यूल थ्रू ऑस्मोटिक फ्लो ऑफ वाटर, दिस इज नॉट द explanation, correct explanation. Vacuole is always engaged in the hydrolysis of salt into their ion. The reason behind that, why the number of ions and other material is higher in vacuole, because these are actively transported inside the vacuole. Cytochromes are protein that take part in ETS are found in ETS पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है बेसिकली प्रोटीन्स और साइटोक्रोम्स हैं, जो आपको मिलती हैं कहाँ पे? अभी हम लोगों ने बात करी थी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। तो क्रिस्टी, जिसको हम लोग क्रिस्टी बोल रहे हैं, आपका जवाब होगा क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी, आगे चलूँ। Both the membranes of mitochondria are structurally different as well as functionally different. Both the membranes of mitochondria ना केवल स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट है बट फंक्शन भी डिफरेंट है। स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों चीज़ें डिफरेंट है। क्रिस्टल माइटोकॉन्ड्रिया इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा, have fluid in it, none of this decreases surface area because it increases the surface area. Which is the following is useful for the synthesis of protein and enzyme? प्रोटीन और के सिंथेसिस के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सो आंसर शुड बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, प्लास्टिड। तो पहले हम लोग पढ़ लें एनसीईआरटी की लैंग्वेज। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हुआ, सेक्शन खत्म। मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, प्लास्टिड, सेमी टॉपिक प्लास्टिड। आइए प्लास्टिड्स पे आइए। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनॉइड्स। प्लास्टिड्स किस में मिल रहा है? प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होते। एंड इन यूग्लिनॉइड्स, प्रोटिस्टा को हम लोग पढ़ेंगे 5, प्रोटिस्टा की 5 हम लोग क्लासेस पढ़ेंगे या 5 आपके ग्रुप पढ़ेंगे, जिसमें एक क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्स, प्रोटोजोअन्स, जिसमें यूग्लिनॉइड्स भी है। तो इसमें प्लास्टिड्स आपको मिल रहे हैं सारे के सारे प्लांट सेल्स में और यूग्लिनॉइड्स में। these are easily observed under the microscope as they are large। तो इनको आप इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे, इनके लिए आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए आपको जेनस ग्रीन से स्टेन करना पड़ा था। बट प्लास्टिड्स आर इजीली ऑब्जर्वेबल, easily can be easily observed under the microscope as they are quite large. They wear some specific pigments, thus imparting specific color to the plants। इसमें आपको पिगमेंट्स मिल रहे हैं जिसकी वजह से स्पेसिफिक कलर
प्लांट को ये प्रोवाइड कर रहे हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंस, प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। So based on pigments, plastids categorized into 3 groups or classes, classified into 3: chloroplast, chromoplast and leucoplast. Chloroplast, chromoplast, leucoplast. The chloroplast contain chlorophyll. क्लोरोप्लास्ट में आपको क्या मिल रहा है? क्लोरोप्लास्ट में आपको क्लोरोफिल मिल रही है, क्लोरोफिल पिगमेंट मिल रहा है। एंड कैरोटिनॉइड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सो क्लोरोप्लास्ट में आपको मिल रही है क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स। Carotenoids are fat soluble, which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis, and these two taking part in trapping the light energy. Thereby, after that, light energy is used for the synthesis of carbohydrates. So the process of photosynthesis, presence of chlorophyll and carotenoids are must. They act as pigment that trap the sunlight. Responsible for trapping light energy essential for photosynthesis. In the chromoplast, fat soluble carotenoid pigments like keratin, xanthophyll and others are present. In chromoplast, so chloroplast contain carotenoids and chlorophyll, and chromoplast do not possess chlorophyll. Chlorophylls are not present in chromoplast. In chromoplast, the fat soluble carotenoids are there, like keratin, xanthophyll and others are present. Okay. Plastids classified or divided into 3 category or group: chloroplast are those which possess chlorophyll and carotenoids, and these two, chlorophyll and carotenoids, are responsible for trapping light energy, thereby taking part in photosynthesis. Next is the chromoplast. In case of chromoplast, you will find the presence of carotenoids and other fat soluble pigments. In chromoplast, the fat soluble carotenoid pigments like keratin, xanthophyll and others are present. This gives the part of the plant a yellow, orange or red color. So chromoplasts are yellow, orange or red colored, yellow, orange or red color, whereas chloroplasts are green in nature, green in appearance due to the presence of chlorophyll. This gives the part of the plant a yellow, orange or red color. The leucoplasts are the colorless plastid, and the third one are the leucoplasts, and these are the colorless. Leucoplasts are colorless plastids of varied shape and size with stored nutrients. Various shape and size with stored nutrients, and leucoplasts can be categorized into 3 according to the what type of nutrients are present in them. Amyloplasts store carbohydrate. Example: potato. Elaioplasts store oils and fats, whereas aleuroplasts store protein. So, according to the type of storage material, storage nutrient, leucoplasts can be classified into 3: amyloplast, elaioplast and aleuroplast. Amyloplasts are those in which carbohydrates are stored. Elaioplasts are those in which oil and fats are stored, and aleuroplasts are those in which protein get stored.
Aleuroplast stores protein. Now let's discuss chloroplast in more detail, more elaborate manner. Majority of chloroplast of the green plants are found in mesophyll cells of leaf. तो ज़्यादातर आपको क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलेगा? In the ground substance of leaf. Ground substance of leaf called as mesophyll cells. So majority of chloroplast of green plants are found in the mesophyll cells of leaves. These are lens-shaped. Chloroplasts are lens-shaped, oval, spherical, discoid or even ribbon-shaped, having variable length 5 to 10 micrometer and width 2 to 4 micrometer. So quite large in size in comparison to other cell organelles. The variable length 5 to 10 micrometer and width 2 to 4 micrometer. Their number varies from 1 per cell to the 1 per cell, such as 1 per cell you will find the 1 per cell number in case of Chlamydomonas and green alga, to the 20 to 40 per cell in mesophyll cells. In the higher plant cells, mesophyll cells. So chloroplast are most majority of the chloroplast of the green plants are found in the mesophyll cells of leaf. These are lens shaped, oval shaped or spherical or discoid or even shaped, and size and dimension variable length, showing variable length. On an average they range from 5 to 10 micrometer in length and width is 2 to 4 micrometer. Number also varies greatly. You will find the chloroplast 1 per cell in case of Chlamydomonas. Chlamydomonas is a green alga, and you can find the number of chloroplast 20 to 40 in the mesophyll cells of higher plants. So chloroplast की बात हो गई. Like mitochondria, the chloroplasts are also double membrane bound cell organelle. So these two are the only double membrane bound cell organelle, chloroplast and mitochondria. Of the two, the inner chloroplast membrane is relatively less permeable. अब ये दो membrane से bound है. Outer membrane almost fully permeable है, inner membrane less permeable है in comparison to outer membrane. The space limited by the inner membrane of chloroplast is called stroma. तो ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन एंड स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा. A number of organized flattened membranous sac-like structure called the thylakoids are present in the stroma. So chloroplast is double membrane bound cell organelle, and the space limited by the inner membrane is called stroma. In stroma you will find the presence of thylakoids. Thylakoids are membranous sac-like structure and they pile together over one another or stack together. The stack of thylakoids are called as grana. A number of organized flattened membranous sac structures, called the thylakoids, are present in the stroma. Thylakoids are arranged in stacks, like the piles of coin called grana. Thylakoids arranged in stack one over the other, like the piles of coins called grana. Or the intergranal thylakoid. Or the intergranal thylakoids. Okay, intergranal thylakoids are, this one is the intergranal thylakoid. In addition, there are flat membranous tubules called the stroma lamellae connecting the thylakoids, so that they are arranged in a thylakoids are arranged in a stack like fashion called the grana or the intergranal thylakoids. And in addition, there are membranous tubules called the stroma lamellae connecting the thylakoid. This is the stroma lamellae that connecting the thylakoid. Stroma lamellae connecting the thylakoid. Stroma lamellae connecting the thylakoid of different grana. The membrane of the thylakoid encloses a space called a lumen. Membrane of thylakoid
enclose a space called the lumen. The stroma of chloroplast contain enzyme required for the synthesis of carbohydrate and protein. For the synthesis of carbohydrate and protein, enzymes are present in the stroma, ground substance. It also contains small double-stranded circular DNA molecules and ribosome. In the stroma, double-stranded DNA, circular DNA molecules are present and ribosomes are present. So these chloroplasts are also semi-autonomous cell organelle. It also possesses machinery so that it can synthesize its own protein. Chlorophyll pigments are present in the thylakoids. Chlorophyll pigments are present over the thylakoid membrane. The ribosomes of the chloroplast are smaller than the cytoplasmic ribosome. As the ribosome of mitochondria, here also the ribosomes are 70S type. Whereas in the cytoplasm of a eukaryotic cell, the type of ribosome present in the cytoplasm are of 80S type. So these are 70S type ribosomes are smaller than 80S type. So 70S ribosomes are present in case of chloroplast, as well as in mitochondria also 70S ribosomes are present. सो इसकी में क्या है जी, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, दोनों मेम्ब्रेन है. इनर मेम्ब्रेन जो है इन कंपैरिजन टू आउटर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल है. मेम्ब्रेन के इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस है वो आपका स्ट्रोमा स्पेस है, और इसमें आपको मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं. थाइलाकॉइड जो एक के ऊपर दूसरा एक तरह से सिक्के की गड्डी जैसे लगती है उस हिसाब से अरेंज हो जाएंगे, जिसको बोलेंगे हम लोग ग्रेना. ये ग्रेना के थाइलाकॉइड्स आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं. जो इनको कनेक्ट कर रहा वो है स्ट्रोमा लैमेले. स्ट्रोमा में आपको मिल रहा है एंजाइम्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. स्ट्रोमा में आपको मिल रहा है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स. स्ट्रोमा में आपको मिलेंगे आरएनए. स्ट्रोमा में मिलेंगे आपको राइबोसोम्स. राइबोसोम्स आर ऑफ 70S टाइप. 70S टाइप के राइबोसोम्स मिलेंगे. ठीक है, तो ये थाइलाकॉइड्स, और थाइलाकॉइड्स में आपको इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स भी मिल सकते हैं. Thylakoids present in the stroma. Thylakoids are arranged in sac. Piles called grana और इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स. इनको हम लोग इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स भी बोल रहे हैं, ग्रेना भी बोल रहे हैं, और इनको दो को जोड़ने वाले को हम लोग स्ट्रोमा लैमेले बोल रहे हैं. मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड. अब ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन भी एक स्पेस को कवर कर रही है, एक स्पेस इसके अंदर है, उसको हम लोग ल्यूमन बोल रहे हैं. द स्ट्रोमा. ये सारी बातें हो गई. अब हम लोगों ने बात कर ली प्लास्टिड की. तो प्लास्टिड लार्जर आपके सेल ऑर्गेनेल है, उनके लिए स्पेसिफिकली आपको स्टेनिंग नहीं करनी ऑब्जर्व करने के लिए अंडर द माइक्रोस्कोप. और ये तीन तरह के हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंस. क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट में आपको क्लोरोफिल मिल रहा है, कैरोटिनॉइड मिल रहा है. क्रोमोप्लास्ट में आपको क्लोरोफिल नहीं मिल रहा, कैरोटिनॉइड्स मिल रहे हैं और अदर फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स मिल रहे हैं. क्लोरोप्लास्ट आपका ग्रीन इन कलर है, अपीयरेंस है, और क्रोमोप्लास्ट आपके येलो, ऑरेंज, रेड हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देम. ल्यूकोप्लास्ट आपके ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, उसमें नहीं होता पिगमेंट, लेकिन ये डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्टोरेज मटेरियल प्रेजेंट इन देम इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 और क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरी. कौन कौन से? अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट. एमाइलोप्लास्ट में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, इलायोप्लास्ट में आपको फैट और ऑयल मिलेगा, और एल्यूरोप्लास्ट में आपको प्रोटीन मिलेगा. क्लोरोप्लास्ट आपके बेसिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एंड फोटोसिंथेसिस, और क्लोरोप्लास्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे उन सेल्स में जो बना रही हैं मीजोफिल. लीफ की मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट सबसे ज़्यादा होता है. क्लोरोप्लास्ट आपको 1% भी मिल सकता है, सच एज क्लेमाइडोमोनस में ग्रीन एल्गा है, और 20 to 40 नंबर भी मिल सकते हैं आपको हायर प्लांट्स की मीजोफिल सेल्स में. क्लोरोप्लास्ट का साइज़ जो है अलग, साइज़ की बात कर लें अगर या शेप की बात कर लें, शेप डिस्क शेप हो सकता है, डिस्कॉइड हो सकता है, रिबन शेप्ड हो सकता है, बहुत तरह के ये क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलेंगे. ये हो गई बातें आपकी क्लोरोप्लास्ट की. और इनका डायमेंशंस तो ये काफ़ी बड़े बड़े हैं. 2 to ये आपको डायमेंशंस में 2 to 4 माइक्रोमीटर विड्थ है और 5 to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ है.
ठीक है जी। अब इसकी क्लोरोप्लास्ट की इतनी पढ़ने के बाद आइए हम लोग देखें प्लास्टिड्स को। बेसिकली पढ़ने के बाद हम लोग देखें हम लोग के पिटारे में क्या है। प्लास्टिड्स पे आते हैं। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स। यूग्लिनॉइड्स आपके बुक की लाइन है, इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट बुक की लाइन है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा। क्रोमोप्लास्ट कंटेन फैट सोल्यूबल पिगमेंट, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, ये भी आपकी बुक की लाइन है, इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा भी नहीं मिला। चलिए आगे चलें, कहीं पे कुछ अगर आपको ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स, वेरियस शेप, ठीक है। एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, बात हो चुकी है, ठीक। इलायोप्लास्ट स्टोर फैट एंड ऑयल, ठीक। वेरस एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन, ये भी बात हो चुकी है, ठीक। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मीजोफिल सेल, ये भी बात हो चुकी। मीजोफिल सेल्स में मिल रहे हैं। लेंथ शेप्ड है, ओवल है, स्फेरिकल है, डिस्कॉइड है और इवन शेप्ड है, बात हो चुकी, ठीक। 1 से 4 ये भी हो चुकी बात, ठीक। ऑफ द टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन रिलेटिवली लेस परमिएबल, ओके, सारी बातें हम लोग कर चुके। मूव टू द नेक्स्ट। A number of organized flattened sac-like structure called the thylakoids are present in the stroma. ये thylakoids में stroma के present हैं. Thylakoids connected to the sac pile called grana. In addition, there are flat membranous tubules called the stroma lamellae. These are the stroma lamellae. बिल्कुल clear है. Connecting to the thylakoid, the membrane of the thylakoid enclose कर रहे हैं एक space जिसको कि हम लोग बोलना है। ये देखिए आपके थोड़ा सा और clear हो जाएगा, ठीक है जी, ओके। चलिए, द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, हो चुकी बात। स्मॉलर ATS, ठीक है। आगे चलूँ, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लास्टिड्स। फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स, यूग्लिनॉइड, ठीक बात है। लार्ज इन साइज, ठीक बात है। बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट, ठीक बात है। सिंगल मेम्ब्रेन, तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, सिंगल मेम्ब्रेन नहीं, यही आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है जी। चलिए आगे चलिए। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्लोरोप्लास्ट ट्रैप लाइट एनर्जी, ओके। क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट्स कलर टू द प्लांट, इम्पार्ट करता है कलर। इलायोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन, एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन। एल्यूरोप्लास्ट, नॉट द इलायोप्लास्ट, सो दिस इज द नॉट द करेक्ट। इलायोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट। क्रोमोप्लास्ट है फैट सोल्यूबल पिगमेंट कॉल्ड। फैट सोल्यूबल पिगमेंट क्रोमोप्लास्ट में क्या मिल रहा है? कैरोटीनॉइड मिल रहा है, आपको टिक लगाना है कैरोटीनॉइड। द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कन्वर्ट्स नेसेंट ऑक्सीजन टू मॉलिकुलर ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन को मॉलिकुलर ऑक्सीजन में बदल देता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। कौन है वो? कैरोटीनॉइड्स है। तो आपको टिक क्या लगाना है? कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स ये आपके क्या काम करते हैं? ये एसेसरी पिगमेंट्स की तरह काम करते हैं। तो हमारे फोटो एक्टिव रेडिएशन के वो वेवलेंथ जिनको क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, ये उनको एब्जॉर्ब करते हैं। साथ के साथ फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं क्लोरोफिल को। फोटो ऑक्सीडेशन से बचा रहे हैं क्लोरोफिल को और हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम का पूरी तरह से यूज़ करने में सहायता करते हैं। तो आपको टिक किसको लगाना है? आपको टिक लगाना है कैरोटीनॉइड को। ओके, कैरोटीनॉइड्स आर अनसैचुरेटेड पॉलीहाइड्रोकार्बन्स बीइंग कंपोज्ड ऑफ 8 आइसोप्रीन यूनिट्स। ये आप भटक जाओगे, इसको आप छोड़ो। पॉली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये तो समझ में आ रहा है। पॉलीहाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड है। द कैरोटीनॉइड्स कैन कन्वर्ट harmful nascent oxygen to molecular oxygen and hence act as antioxidant agent। फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है क्लोरोफिल को, इतना याद रख लीजिएगा। एंटीऑक्सीडेंट एजेंट की तरह काम कर रहा, ऑक्सीडेशन से बचाता है, इतना याद रख लीजिएगा, काम आपका चलेगा। ये हाई थोड़ा आपके क्वेश्चन है जो शायद ही पूछा जाए, लेकिन दिमाग में रख लीजिए। एग्जाम्पल ऑफ वाटर सलूबल प्लांट पिगमेंट्स एंथोसाइनिन होते हैं वाटर सलूबल। ये बात भी आप एक जगह अपने एनसीईआरटी में फोटो पिगमेंट्स वाले जो आपका फोटोसिंथेसिस है वहाँ पे ये बातें लिख लीजिए। एंथोसाइनिन्स आर रेड ब्लू कलर एंड दीज आर द वाटर सलूबल। एंथोसाइनिन्स आर वाटर सलूबल, याद रख लीजिए थोड़ा सा क्या जा रहा है।
The colorless plastids are called as leucoplasts, and their main function to store storage of food. Leucoplast हमारे leucoplast storage of nutrients. Which of the following statement is correct? Elioplast store starch. Elioplast oil को करता है. Septal mesosome helps in respiration. The plasmids are double-stranded linear, double-stranded circular है. Membranous extension into cytoplasm cyanobacteria which contain, उनको हम लोग क्रोमेटोफोर बोल रहे हैं, तो ये ठीक है. सेप्टल मीजोजोम हेल्प नहीं करता रेस्पिरेशन में, डीएनए डुप्लीकेशन डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन में करता है. वो लेटरल मीजोजोम होते हैं जो हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, तो ये भी गलत है. ये वाला आपका ठीक है. मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू साइटोप्लाज्म इन साइनोबैक्टीरिया which contain pigment are called chromatophore. This is the correct statement. Leucoplasts that store oil and fat. Oil fat कौन स्टोर कर रहा? Elioplast. Which of the following statement is correct about chloroplast? Single membrane, wrong. Contain double strand DNA, ठीक. राइबोसोम इन स्ट्रोमा 70s होते हैं, 80s नहीं होते. इनर मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली मोर परमिएबल, इनर मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल. हाँ जी. द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट हैज़ क्या होगा? एंजाइम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस होंगे, एंजाइम फॉर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस होंगे. बोथ ए एंड बी. यू शुड गो विद बोथ ए एंड बी. एंजाइम फॉर डार्क रिएक्शन ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन. एंजाइम्स फॉर डार्क रिएक्शन ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन. क्लोरोप्लास्ट में आपको क्या मिल रहा है? क्लोरोप्लास्ट में आपको एंजाइम्स फॉर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस भी मिल रहे हैं, एंजाइम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस भी मिल रहे हैं. एंजाइम्स फॉर डार्क रिएक्शन ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन. ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता. क्लोरोप्लास्ट में फोटो फास्फोरिलेशन होता है. सो ये इसका आंसर नहीं. तो ये आपका हो गया पूरा कंप्लीट हमारा क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात जानकारी प्लास्टिड्स के. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, द नेक्स्ट सब टॉपिक राइबोसोम. आफ्टर राइबोसोम वी विल टेक अ ब्रेक. हम लोग ब्रेक लेंगे और साइटोस्केलेटन वगैरह हम लोग नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे. तो राइबोसोम कवर कर लेते हैं, राइबोसोम के बाद ब्रेक लेते हैं. आइए राइबोसोम्स पे आइए. राइबोसोम्स आर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पैलेट. तो ये पूछा जाता है आपसे, हु डिस्कवर्ड राइबोसोम्स? जॉर्ज पैलेट वाज द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड और ऑब्जर्व राइबोसोम अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल्स. दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन. तो राइबोसोम्स are composed of RNA, ribonucleic acid plus proteins. RNA plus proteins forms ribosomes and not surrounded by any membrane. Ribosome is not surrounded by any membrane. The eukaryotic ribosomes are ATS in case of cytoplasm of a eukaryotic cell. The type of ribosome that present in the cytoplasm of eukaryotic cell ATS type, while the prokaryotic ribosomes are 70S type. Here S, basically S denotes the Svedberg unit, the unit which tells us about the sedimentation quotient. Each ribosome has two subunits. Whether it is 70S or ATS, each ribosome made up of two subunits, larger and smaller. The two subunits of ATS are 60S and 40S. So ATS ribosomes that are present in the cytoplasm of a eukaryotic cell, ATS 60S and 40S. It is the assembly of 60S and 40S. 40S is smaller, 60S larger subunit. Whereas 70S, the ribosome that present in the cytoplasm of a prokaryotic cell, 50S and 30S. It is the assembly of 50S and 30S. Here S, Svedberg unit, stands for sedimentation quotient.
It is indirectly a measure of density and size. So it is indirectly a measure of density and size. Both 70S and 80S ribosomes are composed of 2 subunits. चलिए देखें भानुमति के पिटारे में क्या है. राइबोसोम्स इसकी बात हो गई, 70S 80S जॉर्ज पैलेट बात हो गई. प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर. ये जहाँ प्रोकैरियोटिक सेल है वहाँ की ये लाइन है. स्ट्रक्चर 70S लार्जर, 80S हो गई. हाँ जी, यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है. 70S राइबोसोम बना हुआ है लार्जर सब यूनिट, 50S और स्मॉलर सब यूनिट. 30S से फाउंड इन प्रोकैरियोट्स में मिल रहा है, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में. 80S राइबोसोम लार्जर सब यूनिट 60-40 फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल. 80S राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोलस. 80S राइबोसोम्स बन कहाँ रहे? न्यूक्लियोलस में. प्रोटीन कम फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. तो आरएनए और प्रोटीन से बने आरएनए बन गए न्यूक्लियोलस में और प्रोटीन साइटोप्लाज्म से आई. 80S राइबोसोम डू नॉट बिकम फंक्शनल इनसाइड द न्यूक्लियोलस. देयर सब यूनिट कम आउट ऑफ द न्यूक्लियस एंड बिकम ऑपरेशनल इन साइटोप्लाज्म. तो देखिए आरआरएनए इज द टाइप ऑफ आरएनए विच टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम. तो आरआरएनए बना न्यूक्लियस में और प्रोटीन साइटोप्लाज्म में सिंथेसिस होती, प्रोटीन अंदर आई और ये सब यूनिट बन गई. लेकिन ये सब यूनिट एक दूसरे पर माउंट होके असेंबल होके फंक्शनल राइबोसोम नहीं बनाएगी. पहले सब यूनिट न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगी और उसके बाद साइटोप्लाज्म में ये फंक्शनल होगी. ये बात यहाँ पे बताई गई है. तो थोड़ा सा महीन बात है जो आपकी अपनी एनसीईआरटी में नहीं लिखा. समझ में आ जाए तो ठीक, ना आए तो बोझा ना रखिए, किनारे कर दीजिए, पूछा नहीं जाता. मैग्नीशियम आयन, ये देखिए मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन इज लेस इन साइटोप्लाज्म, द 2 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम सेपरेट. तो मैग्नीशियम आयन की ऑप्टिमम कंसंट्रेशन चाहिए कि दोनों सब यूनिट एक दूसरे पे माउंट हो जाएं, लार्जर और स्मॉलर. व्हेन द मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन इज इंक्रीज, कम होने पे दोनों डिसोसिएट हो जाएंगे और ज़्यादा होने पे डाइमर फॉर्मेशन हो जाएगा. ये बात भी आपको अगर दिमाग में चिपक रही है तो ठीक, वरना इसको बाईपास कर दीजिए. बस ये ध्यान रख लीजिए कि मैग्नीशियम आयन की ऑप्टिमम कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर द असेंबली ऑफ 60S एंड 40S. वो डिस्कवर्ड राइबोसोम किसने किया था भाई? जॉर्ज पैलेट ने किया था. ये आपकी बुक की लाइन है, तो इसको आप जॉर्ज पैलेट को टिक लगाइए, 4 नंबर जेब में डालिए, आगे बढ़िए. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द राइबोसोम. ग्रैनुलर है, नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ठीक है. यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S, प्रोकैरियोटिक 70S, ठीक. एस स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक. चीफ साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस चीफ साइट फॉर protein synthesis. The larger and smaller subunit during protein synthesis they require presence of किसकी presence? मैग्नीशियम की. ये लीजिए क्वेश्चन आपको मिल गया जो आपको आ सकता. तो मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस रिक्वायर्ड है ऑप्टिमम नंबर पे, कंसंट्रेशन पे, जिससे कि वो असेंबल हो सकें. द राइबोसोम्स आर अटैच टू द सर्फेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से अटैच होते हैं? लाइगेज की नहीं, राइबोप्रोटीन, प्रोटीन ग्लू, ग्लाइकोप्रोटीन, राइबोफोरिन एंड 1 and 2. तो ये ग्लाइकोप्रोटीन, राइबोफोरिन 1 and 2 की सहायता से अटैच होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल वर डिस्कवर्ड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद किसको डिस्कवर किया गया, ये पूछ रहा है आपसे. तो ऑप्शन बी एंड सी इसका सही जवाब है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम. सम सेल ऑर्गेनेल कांट बी सीन with right microscope as they cannot achieve a high magnification. Organelles which can be seen under light microscope are nucleus, cell membrane, chloroplast, cell wall. ये यहाँ पे आप मेरा इसको इस वाली स्लाइड को पॉज करके आप नोट कर लीजिए अपने पास. वो ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल जिसको आप लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं वो है न्यूक्लियस, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट. Mitochondria are also visible under light microscope, but detailed study is not possible. Organelles which can be seen under electron microscopes are ribosome, endoplasmic reticulum, lysosome, centriole, Golgi body.
organelles which can be seen under electron microscope: ribosome, endoplasmic reticulum, centriole, Golgi body, lysosome. Ribosomes, endoplasmic reticulum, lysosomes, centriole, Golgi body. ठीक है जी। तो GERLC कर लीजिए: गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम्स एंड सेंट्रियोल। GERLC कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा आपको रटना। GERLC, दीज आर द ऑर्गेनेल्स दैट कैन बी सीन बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और जो डायरेक्टली आपको लाइट माइक्रोस्कोप से दिखाई दे सकते हैं: सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है जी, रट लीजिएगा आप इसको करके ऐसा: राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, गोल्जी बॉडी। ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज दे वर डिस्कवर्ड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आपका इस वाले क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बोथ बी एंड सी। ये सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे थे, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद देखे जा सके। ठीक है। इफ द राइबोसोम ऑफ सेल आर डिस्ट्रॉयड, देन क्या होगा? रेस्पिरेशन विल नॉट टेक प्लेस, कार्बन फिक्सेशन विल नॉट अगर, प्रोटीन विल नॉट फॉर्म। प्रोटीन विल नॉट फॉर्म होगा, प्रोटीन नहीं बनेंगे। इसके अलावा ऑल ऑफ द अबव, राइबोसोम्स आर डेंस स्फेरिकल ग्रैन्यूल पार्टिकल्स विच कैन अकर फ्रीली इन द cytoplasm or remain attached to the rough endoplasmic reticulum. Ribosomes are properly known as protein factory as they are called protein synthesis. Hence, if the ribosomes are destroyed, protein are not formed. They are no enzyme for respiration and carbon fixation. देखिए, थोड़ी सी टिपिकल बात है। रेस्पिरेशन के तमाम स्टेप ऐसे हैं, हर स्टेप पे आपको कोई एंजाइम चाहिए। कार्बन फिक्सेशन के, कार्बन फिक्सेशन में भी आपको एंजाइम्स चाहिए, प्रोटीन नहीं बनेंगे। और सारे एंजाइम्स, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो रेस्पिरेशन भी नहीं होगा, कार्बन फिक्सेशन भी नहीं होगा, प्रोटीन भी नहीं बनेंगे। कूद के हम लोग अगर इस पे पहुंच जाएंगे, प्रोटीन्स आर नॉट फॉर्म, दैट विल बी हम लोग के लिए मिसलीडिंग हो जाएगा। तो हम लोग का जवाब क्या होना चाहिए? हम लोग का जवाब होना चाहिए कि रेस्पिरेशन, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी। जैसे ही ये क्वेश्चन आया, इंस्टेंटली मेरे मुंह से भी निकला था कि प्रोटीन्स विल नॉट फॉर्म, लेकिन आप थोड़ा सा उसको रुक के एक सेकंड का थॉट देंगे तो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है। रेस्पिरेशन जो है हमारा, रेस्पिरेशन भी उसके तमाम स्टेप प्रोटीन ड्रिवन है, एंजाइम ड्रिवन है, और कार्बन फिक्सेशन के स्टेप भी एंजाइम ड्रिवन है। सो अगर प्रोटीन नहीं बनी तो ये एंजाइम्स भी इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो एंजाइम्स भी नहीं बने तो रेस्पिरेशन प्रोसेस भी नहीं होगा और कार्बन फिक्सेशन प्रोसेस भी नहीं होगा, ये सभी नहीं होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनेल विद एन ऑर्गेनेल? ऑर्गेनेल के अंदर ऑर्गेनेल क्या है? तो राइबोसोम्स है ऑर्गेनेल के अंदर। ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं, ऑर्गेनेल के अंदर ऑर्गेनेल राइबोसोम्स हो गए। द सेल ऑर्गेनेल कॉमन इन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, वो सेल ऑर्गेनेल जो दोनों में मिल रहा है, लाइसोसोम, वैक्यूल, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट। मोनेरा आपका बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा आपका, मोनेरा आपके प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोटिस्टा आपकी यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स नहीं मिलते, लेकिन क्या मिलता है? राइबोसोम। हालांकि ये बात अलग है कि 70S और 80S मिलते हैं, वो टाइप ऑफ अलग है, लेकिन राइबोसोम्स आंसर हो जाएगा। तो सेल ऑर्गन, मोनेरा is a unicellular prokaryote and protista is unicellular eukaryote, but the cell organelle which is common in both is ribosome. Other organelles like lysosome, vacuole and chloroplast are found only in eukaryote, so the answer is ribosome. Which one of the following does not have DNA? इनमें से DNA किसके पास नहीं है? न्यूक्लियस के पास है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास है, क्लोरोप्लास्ट के पास है, राइबोसोम के पास DNA नहीं। Which one of the following structure is an organelle? हो गई बात, ऑर्गेनेल विद एन ऑर्गेनेल। पॉलीसोम इज फॉर्म बाय, पॉलीसोम कब बनता है? जब सिंगल मैसेंजर आरएनए के साथ बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं। सेवरल राइबोसोम अटैच टू अ सिंगल मैसेंजर आरएनए। नीट 2018 का क्वेश्चन है।
द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन डज नॉट अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन। माइट्रोकॉन्ड्रिया डिवाइड होता है फिशन के द्वारा, सेल्फ डुप्लीकेशन करता है। सेंट्रियोल आल्सो अंडरगो रेप्लिकेशन, सेल्फ डुप्लीकेशन करता है। क्लोरोप्लास्ट आल्सो सेमी ऑटोनोमस अपना डुप्लीकेशन कर सकता है। राइबोसोम्स अपना डुप्लीकेशन नहीं करते। तो राइबोसोम आंसर है। द राइबोसोम्स आर पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज। दीज आर द निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज होते हैं। अब हम लोग आ गए साइटोस्केलेटन पे। जैसा कि मैं पहले ही आपको इन बिटवीन द वीडियो बोल चुका हूँ कि साइटोस्केलेटन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो यहाँ पे आके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। मेरे लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ आपसे साइटोस्केलेटन के साथ। इतों को पढ़िए, क्वेश्चन लगा लीजिए। तो मिलता हूँ साइटोस्केलेटन में। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।